Hello friends, good morning all of you. Today we are going to start our lecture number 3rd. In that lecture number 3rd, we are going to cover various modes of heat transfer depending on the various laws. We have seen that how heat is going to transfer. There are three ways to transfer the heat: conduction, convection and radiation. And each one of the mode will have definite law to represent the mathematical equations. So to introduce in front of you, we are going to get the conduction heat transfer law, that is called as a Fourier's law. So you'll see that what is the statement of Fourier's law, what he is used to say. So Fourier's law is regarding conduction heat transfer process. So where the quantity of heat, if you have a quantity of heat per unit area, is directly proportional to temperature gradient. Very important. You can see that here is the statement कि if we will have Q, that is a quantity of heat per unit area, and that heat is directly proportional, directly varies with the temperature difference per unit distance of that temperature difference. So this quantity is called as the drop in temperature per unit thickness is called as a temperature gradient. So in a broad sense of matter, you can say that the quantity of heat per unit area is directly proportional to temperature gradient. What is temperature gradient? Ratio of temperature and thickness. कि मान लो कि आप 10 सेंटीमीटर वॉल है, इस 10 सेंटीमीटर वॉल में 10 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मूव हो रहा है. सो 10 माइनस 8 डिवाइड बाय 10 इज कॉल्ड एज अ ग्रेडियंट. कि जितना थिकनेस बढ़ेगा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपका चेंज होते जाएगा. So temperature distribution is depending on the thickness of the wall. How the heat is transferred, how length, what is the path length of the heat transfer. तो ये जो वॉल का थिकनेस है कि कितने थिकनेस में से हीट को ट्रांसफर होना है, ये डिफाइन करेगा टेम्परेचर ग्रेडियंट. So what is Fourier's law? Fourier's law of heat conduction. One more time, we will go for the theoretical statement. So Fourier's law of heat conduction is nothing but the rate of flow of heat. It is nothing but हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि हीट का रेट क्या है, कैसे हीट फ्लो होता है. रेट ऑफ हीट फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया in a one direction is proportional to very important is proportional to temperature gradient. Temperature gradient. So mathematically we can see that कि Q upon A, Q क्या है यहाँ पे, rate of heat flow upon A, rate of per unit area is directly proportional to dt by dx. So what is dt here? dt is your temperature difference. तो temperature कैसे difference हो रहा है? High temperature से low temperature में heat transfer हो रहा है. So the difference कैसे निकाला जाता है? T2 minus T1 से निकाला जाता है. So T2 minus T1 is a negative difference in temperature. So that यहाँ पे हम थोड़ा चेंजेस करेंगे. देखो अभी चेंजेस क्या होगा कि हमें प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू साइन डालना है, तो ओनली वी हैव परमिशन ऑफ दैट के dt by dx. So what is the proportionality constant? K is the proportionality constant. कि ये रिलेशन हमें पता चल गया कि हीट बढ़ेगी जब टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा, हीट कम होगी जब थिकनेस हमारी बढ़ जाएगी. सो ये रिलेशन तो डिफाइंड है, लेकिन ये कितने परसेंट में डिफाइन है, ये डिफाइन करेगा आपका मटेरियल. कि मटेरियल कौन सा है. आपका मटेरियल ग्लास है, आपका मटेरियल कॉपर है, आपका मटेरियल स्टील है, वुड है, मेटल है. व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज देयर. दैट मींस मटेरियल की कंडक्टिविटी डिफाइन करेगी कि ये रिलेशन कितना वैलिड है. तो इस रिलेशन को वैलिडिटी देने का काम क्या कर रहा है.
So to remove the proportionality sign, we must have to incorporate the proportionality constant called as a K, and that K is known as thermal conductivity. Later on, we are also going to define that, don't worry. So before that, we have to introduce minus sign also. Why? Negative sign indicate that the temperature, the difference. ये जो negative sign indicate the rate of flow of heat. कि यहाँ पे dt अगर T2 माइनस T1 है, देखो सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस वॉल में से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, मतलब मान लो कि यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री, तो 20 माइनस 50 आपका माइनस 30 आ जाएगा, और माइनस हीट फ्लो नहीं हो सकता। इसलिए इस माइनस डिफरेंस को पॉजिटिव करने के लिए हम निगेटिव साइन यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये निगेटिव साइन बाहर आके इस माइनस 30 को पॉजिटिव कर देगी और आपका रेट ऑफ हीट फ्लो पॉजिटिव दिखेगा। वन मोर टाइम, हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस कैसे लेते हैं? T2 माइनस T1 लेते हैं, ठीक है। तो T2 माइनस T1 लेने के कारण क्या हो जाएगा? आपका डिफरेंस निगेटिव आएगा, तो निगेटिव डिफरेंस हमें पॉजिटिव करने के लिए और एक निगेटिव साइन बाहर डालनी पड़ेगी। सो आपका निगेटिव जो डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ऑलरेडी ऑब्वियसली अगर आप देखोगे कि 100 डिग्री से लेके 50 डिग्री में अगर हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस -50 कहा जाता है। तो ये -50 हमें पॉजिटिव करना है, क्योंकि हमें रेट ऑफ हीट फ्लो पॉजिटिव शो करना है। That's why negative sign indicate the direction of heat flow. Heat flows from high temperature to low temperature. So what is dt here? dt is a T2 minus T1, क्योंकि हमें इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है। What is dx? dx the thickness of the wall, distance of heat transfer, thickness of the wall भी कह सकते हो। What is k? K is a proportionality constant called as a thermal conductivity. Thermal conductivity. What is q? Q is the rate of heat flow. Rate of heat flow. यूनिट देख लेते, ये वैट में होगा, ये x मतलब मीटर में होगा, ये डिग्री सेल्सियस में होगा। थर्मल कंडक्टिविटी का हम डिराइव करेंगे, क्योंकि अगर अभी मैंने बता दिया डायरेक्टली आपको कि वैट पर मीटर डिग्री सेल्सियस होता है, ये कहाँ से आया, ये अभी हम अगले पार्ट में मतलब आगे हम डिफाइन करेंगे कि के का रोल क्या है यहाँ पे। पहले फिर से वन मोर टाइम लॉ देख लेते हैं। लॉ क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर आपको किसी ने पूछा तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है? सिंपली रेशियो है डिफरेंस इन टेम्परेचर पर यूनिट थिकनेस, कि 10 सेंटीमीटर के लिए टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन था 10:8, ये हो गया ग्रेडियंट। So in this way we have completed this Fourier's law of heat conduction. You can see that यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कंडक्शन, हाउ कंडक्शन मैकेनिज्म इज टेक्स प्लेस। इट इज अ इंटरनल मैकेनिज्म। आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री वाइब्रेशन जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, लैटिस वाइब्रेशन के कारण एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हीट को कैरी कर लेंगे। इंटरनल मैकेनिज्म। थिकनेस मैटर करता है, मटेरियल का बॉडी का नेचर मैटर करता है कि मटेरियल का शेप क्या है, साइज क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सारी चीजें मटेरियल के वैलिड होती है। इसलिए फूरियर्स लॉ को कहते हैं फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। सॉलिड बॉडी पे फोकस होता है। यू कैन सी दैट हियर फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। qx इज द हीट फ्लक्स। अगर आपको रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया नहीं कहना है तो आप सिंपली हीट फ्लक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है अगर कोई क्वांटिटी एरिया से डिवाइड होती है तो उसे फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एरिया से डिवाइड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बन जाता है, वैसे ही अगर आप रेट ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट को एरिया से डिवाइड कर दोगे तो वो हीट आपकी हीट फ्लक्स कही जाएगी। In the broad sense of matter, you can also say that heat flux directly proportional to temperature gradient. So अगर ये प्रोपोर्शनलिटी निकालना है तो ऑब्वियसली हमें एक कांस्टेंट बीच में डालना पड़ेगा। उस कांस्टेंट को हम अभी डिफाइन करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। So now we are going to start definition.
ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। क्या कॉन्सेप्ट है थर्मल कंडक्टिविटी? तो हम फिर से एक बार मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं कि उसके ऊपर ही हमें डिफाइन करना है कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या कॉन्सेप्ट है। सो Q अपॉन A इज इक्वल टू माइनस के ए, दैट A इज ऑलरेडी देयर, ठीक है, माइनस के डी टी बाई डी एक्स। नाउ सेपरेट द K फ्रॉम हियर। अगर हमने K को सेपरेट कर दिया तो क्या होगा? देखो, K इज इक्वल टू Q अपॉन A अपॉन dt by dx। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि k is also directly proportional to your quantity of heat। मतलब अगर थर्मल कंडक्टिविटी कोई भी मटेरियल की ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली आपका रेट ऑफ हीट फ्लो भी ज्यादा होगा। क्यों? मैथमेटिकली भी आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। अगर हमने k को सेपरेट आउट कर दिया, k को अगर यहाँ से सेपरेट कर दिया तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई की टर्म्स यहाँ पे डिवाइड में चलेंगे। तो अभी इसे डिफाइन करते हैं। देखो, k थर्मल कंडक्टिविटी is the property of the body। ये एक प्रॉपर्टी, it is defined as the ability of conduction of heat। It is defined as ability of conduction of heat from one layer to another layer per unit thickness, per unit thickness, per unit टेम्परेचर डिफरेंस। क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये दोनों भी क्वांटिटी डिवाइड में है। सो इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। कितना कंडक्ट कर पाएगी ये बॉडी के थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड है। अगर ग्लास है तो आप देख सकते हो ग्लास की थर्मल कंडक्टिविटी 0.96 है, मतलब बहुत कम थर्मल कंडक्शन कर पाता है ग्लास मटेरियल। इसके जगह पे अगर थर्मास देखेंगे तो वो और भी बहुत कम थर्मल कंडक्टिविटी शो करेगा। So ये ability of conduction of heat है from one layer to another layer per unit thickness, per unit temperature difference। In a unit area, in a unit time। This is the complete definition of thermal conductivity। अभी यूनिट डिफाइन करना है सपोज हमें, तो कैसा यूनिट डिफाइन करना है? देखो, अगर Q का यूनिट डिफाइन है, रेट ऑफ हीट फ्लो वैट होता है, वैट पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस आपका डिग्री सेल्सियस में होगा और थिकनेस का यूनिट मीटर में होगा। दिस मीटर विल गेट कैंसल। फाइनल यूनिट आपके सामने, वैट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला भी क्रिएट हो गया कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी, और आपका अल्टीमेटली यूनिट भी डिफाइन हो गया कि व्हाट इज यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। So this is all about thermal conductivity। फिर से एक बार डेफिनेशन देखेंगे। It is the ability of conduction of heat from one layer to another layer per unit thickness in a unit temperature difference in a unit area in a unit time। Per unit area, per unit temperature difference, per unit thickness, all these things will get there। क्योंकि सारे पॉइंट वहां पे देखो, हीट कंडक्शन है, इट इज एबिलिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। ये देखो Q है वहां पे, फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, पर यूनिट थिकनेस, यहाँ पे थिकनेस है, पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस है, पर यूनिट एरिया है। ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड इन द डेफिनेशन। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कि फूरियर्स लॉ में जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है उसी का नाम है थर्मल कंडक्टिविटी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, इट प्लेज अ वाइटल रोल फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, either it is from the solid medium or from any conductive medium।
Welcome back, guys. We are here for our next lecture. So just go for the flashback. We have seen thermal conductivity concept. In short, we are going to cover that also. So thermal conductivity, what we have defined thermal conductivity. So K is equal to, अगर आप formula देखोगे, so minus you can see that Q upon A dx upon dt. This is the formula for thermal conductivity. One more time, if you would like to define this term, we can define it. Thermal conductivity is defined as the rate of conduction of heat through a unit area in a unit thickness per unit temperature difference. This is the simple definition of thermal conductivity. Now today we are going to get another law which is depending on the convection heat transfer. Conduction का law हमने देख लिया, Fourier's law. Now we will see that कि what is the convection law. So convection law is the contribution from Newton itself. Newton is going to contribute that concept clearly. So we are going to take Newton's law today. Newton's law of cooling. It is also called as the Newton-Rickman law of cooling. Rickman also contributed some part of study during formation of this law. Newton's law of cooling. Newton-Rickman law of cooling. Just see that now. यहाँ पे convection principle है. We have a simple example in front of you. If you have a cup of tea in the surrounding, and if immediately after a preparation of that cup of tea, the temperature is, the tea of temperature is 60 degrees Celsius. But what will happen after some period of time? According to zeroth law of thermodynamics, all body try to maintain their temperature. All bodies are try to keep all each other in a thermal equilibrium. सभी बॉडी को ऐसा लगेगा कि हम सभी थर्मली इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे, इक्वल पोजीशन में आ जाएंगे, एवरी बॉडी. So according to thermodynamic zeroth law, कि all bodies try to maintain their own temperature or try to keep thermal equilibrium. So on that basis, टी का जो टेम्परेचर है 60 से सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 में आ जाएगा. ये जो प्रोसेस होगा इसे कहते हैं कूलिंग प्रोसेस, नेचुरल कूलिंग प्रोसेस. और ये इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड बाय न्यूटन रिकमन, सो दैट इट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. हाउ कूलिंग टेक्स प्लेस, ये इस लॉ में एक्सप्लेन किया गया है. तो ये लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं हम कि व्हाट इज द स्टेटमेंट. हियर आल्सो अगेन रेट ऑफ हीट कंडक्शन, rate of heat convection per unit area is proportional to only temperature difference. यहाँ पे कोई थिकनेस मैटर नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड से एयर में, वेपर में आपका कन्वेक्शन हो रहा है. सरफेस, ये जो सरफेस ऑफ टी है, ये सरफेस ऑफ टी से हीट लॉस हो रही है एटमॉस्फेयर में, फ्लूइड में, एयर में जा रही है. तो यहाँ पे ओनली टेम्परेचर मैटर्स. अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो आपको H इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. दैट H इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन कोएफिशिएंट. कि कन्वेक्शन हो रहा है ना, कन्वेक्शन मतलब क्या, हीट फ्लोज फ्रॉम एयर मीडियम और अ फ्लूइड मीडियम. सो फ्लूइड का भी कोई रोल होगा ना, फ्लूइड की कैटेगरी होगी ना, फ्लूइड की भी कुछ प्रॉपर्टी का स्टडी करना होगा ना. तो वो जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जो हीट को कन्वेक्ट कर पा रही है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कन्वेक्टिव कोएफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. जैसे कि हमने सॉलिड की प्रॉपर्टी कौन सी देखी कि, तो लिक्विड की जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी H, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड से हीट ट्रांसफर हो रही है. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो क्या होगा ये लॉ, वेरी सिंपल. रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कन्वेक्शन पर यूनिट एरिया is directly proportional to temperature difference. So यहाँ पे temperature difference को define करते हैं. Q is equal to AHS in a bracket surface temperature minus fluid temperature, TS minus QS. ये जो S मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 है
और ये सरफेस का टेम्परेचर 60 है, तो 60 माइनस 25 इंटू दैट एरिया ऑफ दैट कर्व मल्टीप्लाई बाय h, टी का कन्वेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करना होगा, टी का। जैसे हमने ग्लिसरीन का देखा है, ग्लिसरीन की डेंसिटी पता होती है, वैसे ही हमें ग्लिसरीन कोई भी लिक्विड होगा उस सभी लिक्विड के हमें कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर पता होना चाहिए कि उस लिक्विड में कितनी एबिलिटी है हीट कन्वेक्ट कर पाने की, कन्वेक्ट नॉट कंडक्ट, आई एम अगेन टेलिंग यू दैट। So this is all about your Newton's law of heat convection. One more time, directly proportional to temperature difference. So यहाँ पे proportionality जो आ रहा है, proportionality constant जो incorporate हो रहा है, उसे थोड़ा डिफाइन करते हैं. H is called as convective heat transfer coefficient. Convective heat, क्योंकि convection process है, तो convective ही होगा. Convective heat transfer coefficient. अगर यहाँ पे H को सेपरेट कर देते हैं हम, तो H का नया फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, H इज इक्वल टू Q अपॉन A इंटू डेल्टा T. अगर यूनिट हमने देखा तो Q का यूनिट होगा वैट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस. दिस इज अ यूनिट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. यहाँ पे कूलिंग प्रोसेस होगा, यहाँ पे कोई भी हॉट बॉडी इमीडिएटली कूल हो जाएगी, provided that body must have fluid. उस बॉडी में फ्लूइड होना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड से हीट ट्रांसफर हो रहा है, सॉलिड से नहीं. सॉलिड से अगर होगा तो दैट विल बी स्टैंड्स फॉर कंडक्शन, अगर लिक्विड या एयर से होगा दैट विल बी स्टैंड्स फॉर कन्वेक्शन. वेरी इजी, वेरी इजी. So this is all about Newton's law of cooling. Rate of heat flow per unit area proportional to temperature difference. तो डिफरेंस कौन सा होगा? सरफेस टेम्परेचर माइनस फ्लूइड टेम्परेचर. So later on we are going to cover another law of radiation, that is a Stephen's-Boltzmann law. In our next lecture we are going to cover that also. Thank you one and all. Thank you.